Thank you, Pooji. Here it is another question based on a cyclic process, quite useful to understand. We are going to talk about the case of heat extraction in a cyclic process. मतलब कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है एक साइकिल के अंदर, दैट विल बी डिस्कसिंग. और आपको पता होना चाहिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाई भी होती है, एक्सट्रैक्ट भी होती है, और उनका डिफरेंस वर्क के बराबर होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो. It says above PV diagram represents the thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monoatomic gas, and the amount of heat extracted from the source in one cycle we need to check. तो अगर हम यहाँ पे देखें, if I redraw the cycle, this V, P, and in this process if we talk about A, B, C, D, so what's happening over here is this P naught, this 2P naught, V naught and 2V naught. Now in this situation जब ये प्रेशर बढ़ रहा होगा तो हीट सप्लाई होगी, से इट इज Q1. जब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो भी हीट सप्लाइड होगी, इट इज से Q2. नाउ व्हेन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डिक्रीजिंग, हीट विल कम आउट Q3. और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सो इन दैट केस आल्सो हीट विल बी इजेक्टेड आउट, विच इज Q4. तो यहाँ पे Q आउट निकालना है, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो दिस मस्ट बी Q3 प्लस Q4. दिस व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. Q3 is a heat in isocoric process. वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज चेंजिंग. तो Q3 को आप लिख सकते हो NCV डेल्टा T, where डेल्टा T will write TC minus TB, और होल नेगेटिव रहेगा. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, बिकॉज एक्सट्रैक्शन निकालना है, तो वी वांट टू चेक द पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस माइनस NCV फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3/2R, और TC माइनस TB देखोगे आप तो R into nRTC minus TB. So this gives us minus 3/2. nRTC minus nRTB is PCVC minus PBVB. PCVC is 2P0 V0. PBVB is 4P0 V0. So this becomes 3 times, or 3/2 times, this is 2RT0. So this becomes this will be 4P0 V0 minus 2P0 V0 is 2. So this comes out to be 3RT0. This is what we are getting as Q3. So as we have calculated the value of Q3, similarly we can calculate Q4, which is the heat rejected in an isobaric process. This is NCP. This is the TD minus TC, and again we put a minus sign because we want the magnitude, as we already taken it as extracted heat. So it is minus NCP for monoatomic gases 5/2R multiplied by TD minus TC. So TD minus TC of nRT लेंगे तो it is P0 V0 minus 2 P0 V0, it is P0 V0. So this comes out to be 5/2 P0 V0. So total heat Q out जो हमको calculate करना है, this is 5/2 plus 3 P0 V0. So this is P0 V0 only. I have by mistake written RT0. So this comes out to be 11/2 P0 V0. That's the result of this problem. As the temperature is not given, the expression can be calculated in terms of P0 V0. Thank you, Pooji. This is another case of an adiabatic compression. Have a look over here. It says an ideal gas at atmospheric pressure is adiabatically compressed so that its density becomes 32 times the initial value. हमको पता है जब भी कंप्रेशन करेंगे, वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हैं अपन, सो वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बिकम्स 32 टाइम्स इंडिकेट्स वॉल्यूम बिकम्स V/32. फाइनल प्रेशर इज 128 एटमॉस्फेयर. तो वैल्यू ऑफ गामा वी नीड टू चेक. सो हियर P1 इज 1 atm, P2 is 128 atm. V1 से इट इज V, सो V2 बिकम्स V/32, क्योंकि डेंसिटी 32 टाइम्स तभी होगी जब वॉल्यूम V/32 टाइम्स होगा. तो यूजिंग adiabatic compression, here we use P1 V1 gamma is equals to P2 V2 gamma. So this becomes 1 multiplied by V2 power gamma is equals to 128 multiplied by V/32 to power gamma. So here V gets cancelled out. 32 to power gamma, अगर यहाँ पे देखें 32 is what? You know it is 2 to power 5. This 2 to power 5 gamma is 128 is 2 to power 7. So it gives 5 gamma is equals to 7 by taking antilog to the base 2. So here value of gamma we are getting is 7/5, which is 1.4. So that's the result we are expecting to calculate.
थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक केसेस इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर जगह कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में अलग अलग तरीके से सिचुएशन होती है। आपको इन चीज़ों पे कमांड गेन करनी है। एंड हैव अ लुक ऑन दिस केस वेयर इट इज सेइंग ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक कंप्रेशन 830 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 2 मोल्स ऑफ गैस। इसका मतलब ये नेगेटिव वर्क है, ऑन द गैस गिवन है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाई 50% मीन्स वी से इसको v/2 कर दिया है। द चेंज इन टेम्परेचर वी नीड टू कैलकुलेट। सो हियर वी कैन स्टेट work done is equals to minus 830 joule, and work we know it is given as nr T2 minus T1 divided by gamma minus 1. So if work is minus 830, you can write it minus 830, and if we calculate the value delta T, तो delta T हमारे पास आ जाएगा minus 830 multiplied by, and in this case as it is diatomic ideal gas, so gamma will be taken as 1.4, so the 0.4 divided by, there are 2 moles and R is 8.3. So it gets cancelled out, this 2, this 10, so it is minus 20 Kelvin. So this is the change in temperature, or the temperature will reduce by 20 Kelvin. तो यहाँ पे तो 20 Kelvin लेना है हमको, कितना change होगा, that will be the result. Thank you, Poji. So another case of sequential compression and heating of gas. The situation says a gas is compressed from a volume of 2 meter cube to 1 meter cube at a constant pressure of 100 Newton per meter square. प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमने रिड्यूस किया है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे दिस एन isobaric compression. So in this compression, V1 is 2 meter cube, V2 is 1 meter cube, and pressure in this situation is given 100 Newton per meter square. So this much amount of volume reduction is there, तो corresponding calculation we can all do, there won't be any problem कि कितना वर्क होगा वो यहाँ से डायरेक्टली निकलता हुआ दिख रहा है। वर्क डन इज इक्वल्स टू P dV, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 100 जूल। माइनस इसलिए क्योंकि कंप्रेशन हुआ, वर्क इज डन ऑन द गैस। देन इट इज सेइंग द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद आता है हमारे पास आइसोपोरिक एक्सपेंशन। व्हाई इट इज एक्सपेंशन? क्योंकि अगर हीट सप्लाई करी है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट इज नॉट एक्सपेंशन, आइसोबारिक प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर विल इंक्रीज क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज एन एक्सपेंशन। सो प्रेशर विल इंक्रीज। सो इन दिस सिचुएशन 150 जूल हमने एनर्जी सप्लाई करी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ओवरऑल कितना चेंज होगी। आइसोकोरिक के केस में वी नो वर्क डन विल बी जीरो, ओनली सप्लाइड हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। और इन केस ऑफ आइसोबारिक कंप्रेशन वर्क इज डन एज माइनस 100 जूल। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी कैन कैलकुलेट डेल्टा U प्लस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट सप्लाई। इन दिस सिचुएशन वर्क टोटली पूरी प्रोसेस में इतना ही होगा, इस केस में वर्क डन विल बी जीरो। सो टोटल पूरे प्रोसेस के अंदर हम देखें तो 150 जूल हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करी है, इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क होगा हमारे पास टोटली माइनस 100 जूल। सो डेल्टा U वी कैन कैलकुलेट एज 150 प्लस 100 दिस 250 जूल। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी will increase. That's the result of this problem. The only point which is being used over here to be understood is यहाँ पे जो 150 जूल हमने एनर्जी ली है ये पूरे होल प्रोसेस की कंसीडर करिए, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ सेकंड प्रोसेस की एनर्जी कंसीडर करेंगे देन द क्वेश्चन कांट बी हैंडल्ड, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन टू अस एज 100 जूल ऑन द गैस, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। फिर ये कह रहे इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय सप्लाइंग 150 जूल ऑफ एनर्जी। एज अ लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इट सेज कि 150 जूल सिर्फ सेकंड प्रोसेस में है, लेकिन अगर सेकंड प्रोसेस में लोगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सिर्फ सेकंड प्रोसेस के निकलेगी, और वो भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि प्रेशर वेरिएशन इज नॉट गिवन टू अस। इन सेकंड केस व्हाट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड दैट विल बी इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जीरो है। तो सेकंड प्रोसेस में 150 जूल नहीं है, 150 वी आर कंसिडरिंग फॉर द होल प्रोसेस। दैट्स व्हाट यू नीड टू कंसिडर फॉर दिस क्वेश्चन।